हाय गाइस, आई एम स्वप्नजा शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में। बेसिकली आरएसआई डाइवर्जेंस होता क्या है, उसके कितने टाइप होते हैं और उसको ट्रेड कैसे करना है। ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में दूंगी। एज आई सेड अर्लियर, दिस वीडियो विल बी ऑफ 2 पार्ट्स। दिस इज पार्ट 1. ओके, so the main question is, what is RSI diversion? An RSI diversion means that the indicator does not agree with the price action. So basically, indicator is in opposite direction with the price. Okay? प्राइस एक चीज बोलती है, इंडिकेटर एक चीज बोलता है, और इसी चीज को बोलते हैं हम RSI डाइवर्जन। देर आर 2 types of divergence. One is classic diversion and one is hidden diversion. And in classic diversion, there are again 2 types: classic bullish divergence and classic bearish divergence. And in hidden divergence, there are again 2 types: hidden bullish divergence and hidden bearish divergence. So guys, in this particular part 1, we'll learn about classic divergence. First of all, what is classic divergence, and we'll see lots of examples, and the main part is how to trade it. Okay, so let's dive in. So guys, let's see what is classic bullish divergence first. Okay, so this is the price which is coming down, and this is the RSI part. Okay, so basically, if you notice here, price is making lower low. Okay, what price is doing? Price is making lower low, but RSI is making higher lows. So in this case, price is coming down, but RSI is in a different direction. RSI यहाँ पे ऊपर जा रहा है. So this is known as divergence. Now the point is when it forms. So classic bullish diversion forms in bearish market conditions. This is important. It forms in bearish market conditions, and it can be used as trend reversal strategy. So classic, basically this point need to be noted, that classic bullish diversion, any classic divergence, basically known as a trend reversal strategy. Okay, and classic bullish diversion forms in bearish market conditions. So guys, this is just theory. Now we'll see what is classic bearish divergence, and then we'll jump into charts. So let's see now what is classic bearish divergence. So again, what happened in classic bearish divergence is that the price is going up, and this is the again RSI part. So what is happening here is price is going up and making higher highs. Okay, what it is making? Higher highs. But what RSI is doing? RSI is making lower highs. Lower highs. So यहाँ पे प्राइस तो ऊपर जा रही है, बट RSI यहाँ पे नीचे आ रहा है, एंड अगेन दिस इज नोन एज डाइवर्जेंस. ओके, नाउ when it forms in bullish market conditions, and as I said earlier, it can be used as trend reversal strategy. Okay, so this is the theory part. Now let's see some examples of it. So guys, before jump into example, I just want to show you my RSI setting. See, usually by default RSI की वैल्यू जो होती है 14 होती है, but this is my value. I basically use RSI 3. So instead of 14, I change that value to 3, and I use 80 and 20 band. Okay, although we don't need any upper band and lower band in RSI divergence, but I'm just telling you my setting of RSI. So yours might be RSI 14. आपको जो भी डाइवर्जेंस दिखेंगे उनकी वैल्यू अलग होगी, बट ऑफकोर्स RSI 14 एंड RSI 3, अगर वहाँ पे डाइवर्जन है तो दैट वैल्यू डजेंट मैटर. बट सिंस माई आईज आर ट्रेंड फॉर RSI 3, सो आई विल बी शोइंग यू ऑल द डाइवर्जेंस ऑफ RSI 3. सो अगर आप RSI 14 यूज करते हो तो डजेंट मैटर, डाइवर्जेंस आपको वहाँ पे भी दिखेंगे. ओके, सो गाइज लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स. दिस इज अ चार्ट ऑफ मुथूट फाइनेंस. इट्स अ 1 आवर चार्ट, और ये डेट रेंज में आपको अगर बताओ, ये है अराउंड 26 नवंबर का काम है ये,
and see, now you can clearly see the price is coming down, but what RSI is doing? RSI is going up. So price here is making lower lows, but RSI is making higher lows. So this is clear case of classic bullish divergence, and after this you can see the price is going up. That's why it is known as trend reversal strategy. ओके, यहाँ से यहाँ पे एक ट्रेंड बेरिश का था और यहाँ से एक ट्रेंड को बिल्कुल चेंज हो गया और वो बुलिश हो गया, बट इसका जो इंडिकेशन था RSI ने हमें पहले ही दे दिया था. ओके, लेट्स सी अनदर एग्जांपल. सो गाइज, दिस इज HDFC बैंक. ये 15 मिनट का चार्ट है, बहुत रिसेंट एग्जांपल है ये तकरीबन 15 फेब की कैंडल है ये. बट नाउ यू कैन सी द ट्रेंड इज डाउन. दिस इज बेरिश ट्रेंड and price is coming down, price is making lower low, but RSI is making higher lows. So after this you can see this is the trend in HDFC Bank. So this is known as trend reversal strategy, and again this is the second example of classic bullish divergence. Okay, now we'll see couple of examples of classic bearish divergence. So guys, this is Bank Nifty and it's a 1 hour chart of Bank Nifty. ये डेट अराउंड 13 अगस्त के आसपास का काम है ये सब. नाउ यू कैन सी दिस ट्रेंड. दिस इज अप ट्रेंड, बट एज प्राइस इज मेकिंग हायर हाइज, RSI इज मेकिंग लोअर हाइज. सी, RSI ने हमें यहाँ पे पहले ही बता दिया कि देयर इज अ डाइवर्जन. सो RSI इज नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू प्राइस एंड दिस इज द रिजल्ट. यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया. So this is the best example of classic bearish divergence. Let's see another example. So guys, this is Infotech and ये उसका डेली चार्ट है. अगर इसका काम में देखूँ, ये है अराउंड 8 फेब के आसपास का ये काम है. ओके, सो व्हाट इट इज़ डूइंग? इट इज़ गोइंग अप, इट इज़ मेकिंग हायर हाइज, बट RSI इज मेकिंग लोअर हाइज. सी दिस, एंड उसके बाद ये ट्रेंड विच इज़ अ डाउन ट्रेंड, राइट. सो ये जो अप ट्रेंड है, सो प्राइस तो यहाँ पे ऊपर जा रही है, बट RSI हमें ये बता रहा है कि स्ट्रेंथ जो है प्राइस ऊपर जाने की विच इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग. सो ट्रेंड रिवर्सल कैन हैपन एंड दिस इज द ट्रेंड रिवर्सल. ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्लासिक बेरिश डाइवर्जेंस. नाउ विल सी द मेन पार्ट, एंड द मेन पार्ट इज हाउ टू ट्रेड इट. बिकॉज सी, जहाँ तक RSI डाइवर्जन की बात है, इट्स नॉट लाइक कि RSI डाइवर्जन आपको दिखा एंड वैसे ही ट्रेंड चेंज हो गया. नो, इट वर्क्स ओनली 55 to 60% ऑफ द टाइम. ओके, मेनी टाइम ऐसा होता है कि RSI डाइवर्जेंस तो दिखता है पर ट्रेंड रिवर्सल होता नहीं है, और काफ़ी सारे लोग सिर्फ RSI डाइवर्जन दिखा इसलिए उसके ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ले लेते हैं और ऑफकोर्स उसमें फंस जाते हैं. सो सिर्फ RSI डाइवर्जेंस स्पॉट आउट करना एक आर्ट नहीं है, उसको ट्रेड करना भी एक आर्ट है. So now we'll move to the next part, and very important part of this particular video is how to trade RSI divergence. So let's see. So guys, now this is $1 million question. How to trade divergence? Okay, and the answer is spot the divergence on the higher time frame and find the opportunity on the lower time frame. What does it means? अगर आपको डेली टाइम फ्रेम पे डाइवर्जेंस मिल रहा है तो आप अपॉर्चुनिटी कहाँ ढूंढोगे? 1 आवर टाइम फ्रेम पे. ओके, अगर आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे डाइवर्जन मिल रहा है तो आप अपॉर्चुनिटी कहाँ ढूंढोगे? 15 मिनट टाइम फ्रेम पे. और अगर आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे डाइवर्जन स्पॉट हुआ है तो आप अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे 3 मिनट टाइम फ्रेम पे. Okay, and I'll show you how to do this, but this is the gist of this particular video. This is how divergence should be traded. And now what about risk to reward ratio? Using this method you will get trading opportunity with minimum 1:3 risk to reward ratio. Now what does it mean by finding the opportunity? Again, you know my method, you know my strategy, which is 2 consecutive bullish candle or 2 consecutive bearish candle, and RSI 3 should be above 80 or below 20.
those people who doesn't know about this particular strategy, I'll give the link in the description box also, and you can see this I button जहाँ पे आप क्लिक करके इस strategy के बारे में जान सकते हो. So what we are going to do, we are spotting divergence on higher time frame and finding opportunity, the trading setup on lower time frame. So let's see how. So guys, सबसे पहले हमने मुथूट फाइनेंस का एक एग्जांपल दिखा था जो 1 आवर चार्ट पे वो अपॉर्चुनिटी स्पॉट की थी. सो लेट्स सी यहाँ पे प्राइस नीचे आ रही थी और यहाँ पे हायर लोस फॉर्म हो रहे थे, राइट. हम यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन प्लेस करते हैं. सो वी विल अंडरस्टैंड कि यहाँ पे 1 आवर पे हमने ये स्पॉट तो कर लिया कि यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जन बन रहा है. सो ये है 26 नवंबर 9:15 का. नाउ लेट्स स्विच टू 15 मिनट चार्ट and 26 नवंबर विल फाइंड. सो दिस इज 26 नवंबर और ये हमने वो जो लाइन स्पॉट करी थी. अब हमें पता है कि यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जन फॉर्म हुआ है. नाउ व्हाट, नाउ वी आर फाइंडिंग और वी आर वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी. सो लेट्स जूम. सो आफ्टर दिस पर्टिकुलर लाइन, इसके बाद हमें कोई बाइंग सेटअप दिखना चाहिए 15 मिनट चार्ट पे, एंड दिस इज आवर सेटअप. सी दीज आर 2 बुलिश कैंडल्स, consecutive bullish candles, and RSI is above 80. This is our setup and we'll go for 1:3. जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, ये ट्रेड एक्टिवेट हुआ एंड दिस इज द टारगेट 1:3. दिस इज हाउ यू फाइंड द सेटअप. फिर हमने अभी रिसेंटली जो स्पॉट किया था HDFC बैंक में, लेट्स सी दैट. वो 15 मिनट पे स्पॉट किया था हमने, राइट. अगेन सी दिस, यहाँ पे प्राइस लोअर लो बना रहे हैं और यहाँ पे हायर लोज बना रहे RSI. सो दिस इज क्लासिक बुलिश डाइवर्जन एंड नाउ विल जस्ट स्पॉट दिस लाइन. यहाँ तक हमें दिख रहा है कि एक डाइवर्जन फॉर्म हो रहा है. तो ये डाइवर्जेंस हमने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे स्पॉट किया है. नाउ विल स्विच टू 3 मिनट टाइम फ्रेम एंड विल सी कि हमें कहीं अपॉर्चुनिटी मिली का 3 मिनट पे. लेट्स सी. सो ये जब 15 मिनट कैंडल कंप्लीट हुई है तब जाके ये डाइवर्जन हमने स्पॉट किया है. सो 9:30 के बाद की हम सारी अपॉर्चुनिटी देखेंगे. एंड 9:30 के बाद, नाउ सी दिस 2 consecutive bullish candles and RSI above 80. Now as I always say, just give some room for SL. Okay, so ये 1:3 हमने स्पॉट किया है. I'm just stretching it out. This is the entry, this is the entry, this is the target. Now we'll see examples for classic bearish divergence. Let's see. जैसे इन्फोसिस का हमने देखा था डेली चार्ट पे, यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रही थी और RSI नीचे आ रहा था जो लोअर हाइज बना रहा था. सो विल जस्ट मार्क दिस पर्टिकुलर डे जहाँ पे RSI लोअर हाई बना रहा है. नाउ दिस 8 फेब ऑनवर्ड्स हमें 1 आवर चार्ट पे अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है. सो लेट्स सी, विल स्विच टू 1 आवर चार्ट. यहाँ पे कहीं हमको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एंड दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी. नाउ दिस इज़ 1 आवर. ओके, सो 1 आवर चार्ट आप इंट्राडे के लिए तो यूज़ नहीं कर सकते. सो दिस माइट बी अ स्विंग ट्रेडिंग. जब आप डेली पे स्पॉट कर रहे हो और 1 आवर पे उसको ट्रेड कर रहे हो तो दैट ट्रेड विल टेक 2 to 3 days टू एटलीस्ट गो फॉर दैट पर्टिकुलर टारगेट. दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी. ओके, 2 बेरिश कैंडल एंड RSI बिलो 20, राइट. अगेन एज आई सेड, थोड़ी सी रूम SL के लिए दे दो, सो दैट वुड बी गुड. या दिस इज 1:3. दिस इज द अपॉर्चुनिटी. ओके, दिस इज द अपॉर्चुनिटी and you have spotted this particular diversion on daily time frame, right? So guys, let's see other example. See this. This is recent example of gold. Okay, this is gold का ये 1 hour का chart है and it is going up, but clearly RSI is making lower highs. Okay, again a clear cut case of classic bearish divergence. Now this is 1 hour, right? तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि गोल्ड में कभी भी हमें एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है. देयर इज अ पॉसिबिलिटी. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज विल फाइंड अ अपॉर्चुनिटी. सो नाउ लेट्स फर्स्ट स्पॉट इट. नाउ सी, विल डू वन थिंग. सी, यहाँ पे भी सेम केस था. सबसे पहले ये हाई बनाया था, ठीक है, ये डाइवर्जेंस ही था. सपोज हमने यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से कोई हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है क्या. ये 6 नवंबर का काम है, 6 नवंबर at 4 o'clock, right?
तो हम 15 मिनट के चार्ट पे जाते हैं और यहाँ से 6 नवंबर पे जाते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिली थी हमें। सी आफ्टर दिस पर्टिकुलर जो ये लाइन स्पॉट हुई है, यहाँ पे एक हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी। तो लेट्स स्पॉट इट। सी these are two bearish candles and RSI was below 20. Okay, perfect. Plot our SL and target. Now we just, and 1:3. This is 1:3. Let's say we'll just stretch it. Now see, in this particular trade, यहाँ पे trade activate हुआ, but यहाँ पे almost SL hit ही हुआ है। Okay, अगर आप tight SL लगाते हो तो of course ये कंसिडर कर लो कि केस यहाँ पे SL हिट हुआ है, बट अगेन डाइवर्जेंस तो हमको पता है कि डाइवर्जन हुआ है। सो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी गोल्ड ने कब दी थी? ये यहाँ पे अगेन एक अपॉर्चुनिटी दी थी गोल्ड ने, विच इज 2 बेरिश कैंडल्स एंड RSI बिलो 20। ओके, एंड अगर हम फिर से उसको स्पॉट आउट करें एंड दिस टाइम विल गो प्लेस SL ओवर हियर, क्योंकि ये जस्ट एक स्विंग हाई बना था उसका, एंड विल गो फॉर 1:3 एंड दिस इज योर ट्रेड। फर्स्ट ट्रेड मिस हुआ, फर्स्ट ट्रेड का SL हिट हुआ, बट अगेन डाइवर्जेंस तो बना था, सो यू आर फाइंडिंग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी एंड दिस इज द वन। अगेन आपको एक ट्रेड मिला and these are the results, and trust me 1:3 is actually minimum risk to reward I am talking about। जब RSI डाइवर्जेंस एक्टिवेट होते हैं तो वो अच्छे रिस्क टू अच्छे टारगेट्स देके जाते हैं, 1:3, 1:4, 1:5। सो गाइज दिस इज हाउ यू ट्रेड बेसिकली RSI डाइवर्जन। सो अगर वो RSI डाइवर्जन फेल भी हो गया, ओके, ट्रेंड रिवर्सल नहीं भी हो गया, तो आप एक छोटा सा लॉस देके आप निकल आते हो, पर अगर वो एक्टिवेट हो गया तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है एंड 1:3, 1:4 के टारगेट्स होते हैं। सो दिस इज हाउ यू शुड ट्रेड RSI डाइवर्जन विथ ग्रेट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। नाउ इस पर्टिकुलर पार्ट में मैंने क्लासिक डाइवर्जेंस कवर किया है। नाउ नेक्स्ट पार्ट में मैं हिडन डाइवर्जेंस के बारे में बताऊंगी, एंड ट्रस्ट मी हिडन डाइवर्जेंस आर मच मोर पावरफुल देन क्लासिक डाइवर्जेंस। ओके, सो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। ओके, सो नेक्स्ट हम मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट में विथ हिडन डाइवर्जेंस विच इज मच मोर पावरफुल। सो बाय एंड हैव अ नाइस ट्रेडिंग सेशंस अहेड।